Hello friend, welcome to Entry App. My name is Akash Shukla and I teach you quantitative aptitude for all banking exams at Entry App. And today I'm here with Rajat sir who has cracked IBPS Clerk 2019 and now working in an Indian bank. तो चलिए चलते हैं इनके पास और जानेंगे सब कुछ कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही and how he has cracked IBPS Clerk 2019. So Rajat sir is over to you. So welcome to Entry App. First of Thank you, all, sir. so, sir, please tell us about yourself. So, before starting the further discussion, please tell us about yourself. Sir, my name is Rajat Dwivedi, and sir, and I am from Etawah, Uttar Pradesh. So, sir, that's it, sir. And I graduation ended in 2019, and from 2019 I started preparing for banking examinations. Actually, my goal was SSC exam, but when I saw that SSC takes too much time for the declaration of result, and that time the case was also pending in the court for the 2017 result. So I thought that the procedure of banking is quite fast, and I think that if I can prepare for SSC, then I can prepare for banking too. And sir, all the exams have taken in a transparent way in banking, so that there was no complaint. So I guess that it would be a good decision to take job first in banking, and then I can focus on my other future goals as well. So, बिल्कुल सही बात. SSC exams takes very much time. Even if you can see SSC 2017 के जो बच्चे हैं वो अब 2020 या फिर 19 में ज्वाइन ही हो रहे हैं. But as far as banking exams are concerned, so they don't take much time. वो क्या Yes, sir. करते हैं जैसे ही उनका नोटिफिकेशन अनाउंस होता है तो वो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग तक अपना प्लान सेट कर देते हैं. So they have the good management overall. So ये बात बिल्कुल सही है. So just you took the decision very fast and in a very smart way. So uh, that's why you are banker now. So Yes, sir. sir, please हमें बताइए कि from where you are. First of all, please tell us that from where you are and how you started your preparation. Sir, I am from Etawah, Uttar Pradesh. Sir, and sir, my preparation was like, sir, sir, I think that nowadays, sir, with so much digital learning platform, so sir, it becomes easier for anyone to prepare online, sir, as compared to offline. You can actually prepare from your home, so with all your comfort, so it becomes easy for anyone to prepare now with internet and there are so many platforms like YouTube or an academy, and so there are many apps too, so it becomes easy for us to actually prepare online now nowadays. ओके या इट्स वेरी इजी. बहुत इजी हो गया है आजकल के टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि अब क्या है हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स क्या ऑनलाइन है. तो अब ऑनलाइन अगर एग्जाम है तो ऑनलाइन मोड ही इज वेरी बेटर, इज फार बेटर देन द ऑफलाइन मोड. तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और रजत सर ने भी बात बिल्कुल सही कही है. तो सर सबसे बड़ी बात ये कि मैंने पढ़ा है आपकी स्टोरी में कि आपने क्या बहुत सारे फेलियर्स के बाद आपको एट द एंड सक्सेस मिली, लेकिन आपने क्या हार नहीं मानी. आपने एट द एंड सक्सेस पाके ही अपनी जो है अपनी जर्नी खत्म करी. तो सर मुझे बताइए कि मतलब हाउ वाज द जर्नी ओवरऑल, आपने किस तरह से स्टार्ट किया और किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचे. सर फेलियर्स तो ऐसे कुछ नहीं थे. आई डोंट थिंक सर आई हैड एनी फेलियर बिकॉज in 2019 I started my preparation, and IBPS PO was my first competitive exam, and I qualified all the stages of IBPS PO, be it pre, mains or interview, but I could not actually go off the final cutoff, and I think I was left by 2.33 marks in the final cutoff because I had much less marks in GA. So sir, I could not score much in mains. So the overall cutoff, I guess it was 44.44 for general, and I scored 42.11. So I was left by 2.33 marks. And sir, IBS clerk was also my first attempt. And at that time, I knew that how to prepare for GA because I was very bad in GA. During Luckily, when I gave IBPS PO mains, I was not good in GA. But when I gave IBPS clerk mains, I knew that from where I should study GA and from where I should attempt the quizzes for GA and how to retain all the things that I have studied in GA now. So, sir, my score was good in GA in IBPS clerk mains, and the rest of the sections was already good.
that so that I qualified IPS clerk for the first time, actually in the first attempt. So I don't think that, sir, I had any failures now. So yes, that was a story. Okay, yeah, very good, very good. Basically, taking your failure a lesson is very important for any successful man, and you did the same. So it's a very good job, sir. So बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की। तो क्या आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी रही? एज वी नो देयर आर थ्री मेजर सेक्शन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो स्टार्ट विद स्पीकिंग द मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही टू क्रैक द एग्जाम? Sir, speaking of prelims, I think the speed is a major factor there, because I think everyone, actually each aspirant know that how to solve a question, but the time taken by each aspirant in pre depends on the practice that he has done from the actually before the exam. So the major factor in pre exams is speed. So for maintaining the speed, actually, if you talk about mathematics, once you clear all your concept in mathematics, the rest will depend only on the practice. Actually, what happens with each aspirant is that they know concepts in mathematics, but they find it hard to club them while solving the questions. So in order to actually eradicate this problem, so ample amount of practice should be done, and that can be done with from books. And because but nowadays mocks are the best thing that people should choose for practice, because they give the new patterns of question, which I guess books does not give nowadays. So I think that mocks play a very important role in mathematics, because they give questions, and they give questions which actually appear nowadays in exams too. So in maths, my strategy was I cleared all the concept, and I did an ample amount of practice from there. Okay, yeah, बिल्कुल सही कहा कि we just need ample amount of practice so that we can make our command on the speed of solving the question. तो जैसे कि सर हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कुछ 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर खासकर हम बैंकिंग एग्जाम की बात कर लें तो पैटर्न तो ऑलमोस्ट फिक्स होता है हर बार। सबको पता है कि भाई मैथमेटिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाना है, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो या फिर आपका क्लर्क का एग्जाम हो। 20 से 25 सवाल 35 में से यहीं से आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी रही आपकी कि भाई आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इन टॉपिक्स पे फोकस किया, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम आपने कुछ जो अर्थमेटिक के टॉपिक थे वो आपने उन पर ध्यान दिया? Sir, for mathematics, I solely actually depended on the arithmetic. I think that I only focused on the arithmetic portion, because I knew that if I am able to do arithmetic questions, I will be able to solve DI too. Because DI में ऐसा कुछ भी नया नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अरिथमेटिक के, तो चाहे वो प्रॉफिट लॉस की DI हो, चाहे वो मिक्सर एलिगेशन की DI हो, चाहे वो स्पीड एट टाइम एंड डिस्टेंस की DI हो, आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने DI पे अलग से फोकस किया था। I just focused on the concept of arithmetic, and I solved all in the arithmetic questions for practice only. I did not actually give my too much time on DIs, because I knew that if I am able to solve arithmetic questions, I will be able to solve DI too. तो सर ऐसा रॉन्ग नंबर सीरीज में मैं कभी कभी फंसता था, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज में आपको पता लगता है कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कि क्या लॉजिक है, आपको पता लग जाएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो मैंने आई गेस IPS PO से पहले रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ 600 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसके बाद सर फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वो PO का एग्जाम था और चाहे वो मतलब IBPS किसी का भी एग्जाम था, SBI, जैसे मैंने अभी SBI JEE का दिया था, तो उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज काफी अच्छी आई थी, तो मैंने काफी जल्दी कर दी थी। तो अगर प्रैक्टिस है, आप जान जाते हो कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो ऐसे सर मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने तैयार की थी। मिसिंग नंबर सीरीज तो जनरली लोग कर लेते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज में उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो ही सर प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि वही कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉजिक्स होते हैं जो कि अप्लाई हो रहे होते हैं। तो सर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होगा या फिर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे ही सर कॉन्सेप्ट लगते हैं जो कि
अगर आपको प्रैक्टिस करिए तो आपको पता लग जाएंगे वहां पे। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल बहुत सही बोली है आपने कि अबाउट द डीआई द एस्पिरेंट मस्ट नीड टेक केयर ऑफ कि जो डीआई है ना, डीआई इज नथिंग बट वहां पर क्वेश्चन जो होते हैं आपके एवरेज से होते हैं, ठीक है, और आपका परसेंटेज से होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से होते हैं। तो और क्या है, कई बार परसेंटेज कंपैरिजन भी होता है। तो इस तरह की डीआई पूछी जाती है, और ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका अर्थमेटिक टॉपिक से। तो अगर आपके अर्थमेटिक टॉपिक में अच्छी कमांड है, देन यू विल डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द डीआईज दैट यू विल हैव इन द एग्जामिनेशन। तो इट्स यस अ सर। वेरी गुड थिंग गाइस रिगार्डिंग द डीआई, सो यू मस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को कि टीआई को का क्या है, कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्पेशल देखने की जरूरत। अगर आपके अर्थमेटिक पे अच्छी कमांड है तो आप डेफिनेटली डीआई सॉल्व कर ले जाओगे। Okay, sir. So please start speaking something about the reasoning. What's your strategy regarding the reasoning section? Sir, reasoning, in reasoning, when I started preparing for IBPS PO in June 2019, and sir, so because there is a major portion of puzzle and sitting arrangements in reasoning, I solved some last year question papers of IBPS clerk, SBI clerk, IBPS PO, SBI PO. I looked at the SBI PO paper of 2019 to जो सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैंने देखे थे। तो उससे मुझे पता लगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है, आई गेस 22 or 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 come from the puzzles and seating arrangement parts. एंड सर 3 or 4 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ब्लड रिलेशन। एक ब्लड रिलेशन की भी एक पजल होती है, उससे 3 or 4 क्वेश्चंस होते हैं। सो 27-28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 कम फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, blood relation puzzle and that seating arrangement square based and floor based. So I thought that if I'm able to do 30 out of 35 in reasoning, so I had to focus on only puzzles and seating arrangements, and that is what I did. And with time I learned the concept of miscellaneous too from YouTube, from some teachers, and sir, and I think the majority of the portion was actually I focused on reasoning and puzzles and seating arrangements only, and so this was a strategy. And while you cleared concept that how to approach a puzzle or a seating arrangement, how to note down all the points in reasoning, uh, so once you learn these things, that how to actually write down how to start a puzzle, so when you learn these things in an efficient way, the rest will depend only on the practice, and from there I did only practice only. बिल्कुल सही बात। जैसे ही हम नाम लेते हैं, सुन एज वी स्पीक अ नेम दैट इज रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट थिंग कम्स इन द माइंड, वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बिकॉज यू नो 20 to 25 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड आउट ऑफ 35, सो मोस्ट ऑफ द पोर्शन यू विल सी इन द एग्जामिनेशन ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर आपकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर अच्छी कमांड है, यानी कि आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व द पजल एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन ब्लड रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाओगे, डायरेक्शन सेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर ले जाओगे। और एक आजकल ऑर्डर और रैंकिंग पे भी एक पजल टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, जो कि कंपैरिजन बेस्ड होता है कि भाई ये इससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, और फिर ये जो है सबसे छोटा नहीं है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो 3 से 4 क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं, और बाकी बचे जो 5 मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो कि स्लोग इनइक्वालिटी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से होते हैं, वो आप डेफिनेटली विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम कर ले जाओगे। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है रीजनिंग की। देखिए दोस्तों, अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, और आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग को लेकर, और आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ देखिए झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भाई मेजर पोर्शन कवर करता है फॉर द रीजनिंग सेक्शन आज इन बैंकिंग एग्जाम। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ओके सर, सो प्लीज टेल अबाउट समथिंग अबाउट द इंग्लिश। तो ये एक सबसे ज्यादा डराने वाला सब्जेक्ट रहा है बच्चों को, खासकर बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट को, कि वो क्या है, इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। और कई बार हमने देखा है ये इंग्लिश सेक्शन क्या है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप एग्जाम क्रैक करोगे या नहीं। तो सर, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस सेक्शन, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन? Sir, actually, sir, when we talk about English, so that English can play a very important role in someone's selection in pre, or we can say in mains too. And sir, if your English is good, then your descriptive marks in mains will be good too,
and that will play an important role in your selection for your IPS PO mains or any mains, SBI PO mains, because descriptive is only in PO. So if your English is good, then you can score 35 or 40 in SBI PO mains, and that can take you through the cutoff. So in English, सबको पता है कि सर SSC और बैंकिंग की इंग्लिश में काफी डिफरेंस है. In SSC, we see a lot of questions that are from grammar portion, like active, passive, direct, indirect, and there are many questions on grammatical mistake. But if we see the banking English, we generally see that the most of the questions are from comprehension and your understanding. So, sir, I guess banking में अगर हम जितना ज़्यादा रीड कर पाएं, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे नॉवेल्स हो, चाहे मतलब कोई भी आर्टिकल्स हो, एंड प्लीज मेक मतलब मैंने तो सर एक हैबिट बनाई थी कि मैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग आर्टिकल पढ़ा करता था, जिससे कि जब अगर एग्जाम में बहुत लंबा आ जाए तो मैं मेरा जो ध्यान है वो ना भटक जाए, मतलब जो मेरा डेडिकेशन है ना वो एक उसी पे रहे लगातार, मेरा कॉन्सेंट्रेशन. तो माई हैबिट वॉज टू रीड सम लॉन्ग आर्टिकल्स. तो सर उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा बढ़ी चीजों की, उससे मेरी लॉजिकल रीजनिंग में काफी अच्छी हुई, जिससे कि मुझे रीजनिंग में भी फायदा हुआ मेंस में. Because if you read articles, you get to know about different points or different scenarios from there. कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है. So article reading तो एक बहुत अच्छी चीज है इंग्लिश में. और आर्टिकल से सबसे अच्छा ये रहता है कि आपकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग होती है. और इंग्लिश में अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे. क्योंकि अगर आपको पता है कि वर्ड्स का यूसेज कैसे सही होता है, तो जो वर्ड्स रिप्लेस करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन से वर्ड किससे रिप्लेस होगा, so that the question is meaningfully correct and grammatically correct. So if you know the proper usage of words, you can solve those questions. Fillers भी, if you know the proper meaning of words and if your vocabulary is good, you know that which word can replace that blank here. So the fillers में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है. एंड आरसीज में करता था सबसे लास्ट में, बिकॉज मुझे पता था कि अगर आरसी थोड़ा लंबा आ गया तो थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, तो मैं सबसे उसे लास्ट में किया करता था, चाहे वो मॉक्स हो और चाहे वो रियल पेपर हो, तो उसको मैं सबसे लास्ट में क्या करता था. तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप जल्दी से रीड कर ले जाओगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. पर अगर आपने रीड नहीं करा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. आपने पहला पैरा पढ़ा और फिर दूसरा, जब तक आप आखिर तक आए तो आपको पहला पैरा आप भूल गए हो कि आपने क्या पढ़ा था, फिर आपको दोबारा वापस जाना पड़ रहा है. कोई क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया, आपको याद नहीं है कि आपने क्या पढ़ा था, आपको दोबारा वापस जाना पड़ रहा है. तो इंग्लिश में रीडिंग प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, एंड मैंने वही किया था. मैंने बहुत रीड किया था. मैं दिन में 1 घंटा तो रीडिंग को दिया ही करता था, चाहे वो द हिंदू हो और चाहे वो कोई आर्टिकल हो, मैं रीड जरूर किया करता था. नॉवेल्स मैंने सर बहुत सारी पढ़ी हैं. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल रीडिंग इज अ मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू अडॉप्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश सेक्शन. तो ये बात बिल्कुल सही है. और क्या है, आर्टिकल रीडिंग से एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है, आपको रीडिंग की हैबिट तो डलती है, साथ साथ कुछ ऐसे वोकैब वर्ड या कुछ ऐसे वर्ड जिनकी आप जानकारी लेना चाहते हैं, जो कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं. जैसे कि आप कोई भी करंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वहां पर ना कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि ट्रेंड में चलते होते हैं, करंट ट्रेंड में होते हैं, और वही वर्ड इन टर्म्स ऑफ वोकैब, इन टर्म्स ऑफ आपका फिलर्स वगैरह आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती इससे. तो आर्टिकल रीडिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आर्टिकल रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होता. सिंपली आप जैसे अपने फोन में व्हाट्सएप करते हैं या अपने फोन में कोई भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तो आप इसी तरह से कोई भी आर्टिकल फाइंड कर सकते हैं. द हिंदू का फाइंड कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का फाइंड कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर इंग्लिश में न्यूज होती है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है. अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल रीडिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मेजर फंडा, जैसे कि सर मुझे बताइएगा अगर ऐसा सही है तो, जैसे कोई भी एक करंट टॉपिक होता है, जैसे बच्चे लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो कोई भी करंट टॉपिक होता है तो उससे रिलेटेड क्यों ना आर्टिकल एक पढ़ा जाए. उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आपका आता है, या तो द हिंदू में आता है या फिर कहीं भी वेबसाइट में मिलता है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल जरूर पढ़ा जाए, और उस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी वोकैब होते हैं उनको मेमोराइज किया जाए, तो वो इट विल बी ग्रेट ना सर. यस सर एक्चुअली क्या करते हैं, अगर सर हम करंट टॉपिक को पढ़ते हैं, करंट टॉपिक्स पे आर्टिकल पढ़ते हैं, तो जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं, इंटरव्यू में किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो पीओ का, चाहे वो आईपीएस पीओ का, चाहे वो एसबीआई पीओ का, या फिर एलआईसी का भी हो,
तो जब मैं रिव्यूज पढ़ रहा था अपने इंटरव्यू से पहले, IBPS PO इंटरव्यू से पहले, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि काफी सारे क्वेश्चंस उनके करंट टॉपिक से थे, जैसे कि शाहीन बाग से और द CAA NRC थिंग। तो अगर सर आपने करंट टॉपिक्स पे आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उन टॉपिक्स पे होगी, तो यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और अगर आपको बस केवल पता ही है कि CAA NRC आपको बस पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है कि ये कौन से मतलब सिटीजन से लॉ को अमेंड करके बनाया गया, या फिर मतलब वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इससे आपको इंटरव्यू में भी फर्क पड़ेगा, और आपकी जो वोकेबलरी है और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, वो तो अच्छा हो गई। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप करंट टॉपिक्स को पढ़ें एज रेदर देन द अदर टॉपिक्स। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बहुत ही सही स्ट्रैटेजी रही अभी तक सब्जेक्ट वाइज, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है। तो सर एक कुछ और अभी बातें पूछेंगे आपसे। तो सर आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉक टेस्ट इन योर प्रिपरेशन? ये मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? Sir, as we see that, sir, when the exams have all the exams have gone online, so actually there is a need of mocks too, because mocks करने से क्या होता है सर, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आप सर अगर करते हो व्हेन यू अटेम्प्ट द एग्जाम्स, आप कभी छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा बट यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चंस क्वाइट वेल, एंड यू एंड अप मार्किंग द रॉन्ग ऑप्शन। सो सर मॉक से क्या होता है, आपकी जो छोटी छोटी गलतियां आपको वो पता लगती हैं, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उससे। सर व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक फॉर IBPS PO, my score was 35-36 out of 100, and when I give, I think, 14 or 15 mocks before the IBPS PO exam, pre-exam actually, so that my score was increased to 62 or 65 at that time. So सर मैथ्स, तो मुझको सर कॉन्सेप्ट मुझको तब भी आते थे और मुझको सर कॉन्सेप्ट अभी भी आते हैं, पर सर मॉक से क्या हुआ, जो एग्जाम अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो हमें पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग। जैसे आपको पता है कि रीजनिंग में मतलब हर टाइम जो जो पजल्स होती हैं, जो पजल्स टाइप होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो पहले मंडे ट्यूसडे की काफी आया करती थी, अब सर वो चेंज हो गई है। अब वो सर एक डेजिग्नेशन वाला पजल दे देते हैं, जो कि अगर आपने मॉक्स नहीं किए होंगे पहले, और आपने उन क्वेश्चनों का पहले नहीं किया होगा, तो आप कर सकते हैं, पर यू विल एंड अप टेकिंग वेरी मच टाइम फॉर द पजल्स, एंड इफ यू आर स्टक इन अ पजल, then I think your 10 of 12 months will be wasted and the reasoning section is gone now. तो तब तक सर बहुत देर हो चुकी होती है, तो हमको वो क्वेश्चन पहले से ही करके चलने हैं, जैसे कि जब हम एग्जाम में जाएं तो हमें कोई न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो मॉक्स आई थिंक प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन एनी एग्जाम, चाहे वो मेंस की हम बात कर लें, चाहे हम वो प्री की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, तो मॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। बिल्कुल सही बात। नॉट ओनली सब्जेक्ट वाइज बट ओवरऑल मॉक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये हमने देखा कि भाई अगर इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द पजल सिनेरियो इन द रीजनिंग सेक्शन, या फिर कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको बनानी है, तो दिस इज व्हाट यू कैन अचीव फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट ओनली। तो बिल्कुल सही बात है सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि सर इफेक्टिव आवर स्टडी कितना होना चाहिए, मतलब हाउ मच आवर्स वी नीड टू स्टडी, क्योंकि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, है ना, और आपका टाइम टेबल कैसे रहा उसके अकॉर्डिंग, तो कुछ इस बात पर हमें बताइए। Sir, I am being very honest with you. Sir, I did not make a timetable for study ever. Actually, sir, from the college days or even while preparation of banking exams or SSC exams, I did not make a timetable. But I thought that if I get time for reasoning at any part of the day, I will read, I will study. तो सर कुछ ऐसा था कि जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ लिया करता था, बिकॉज सर इफ यू मेक टाइम टेबल and if you are not able to follow it, so then you end up feeling guilt for it that आपने टाइम टेबल एक बनाया है पर आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो उस गिल्ट से बचने के लिए, उस जो प्रेशर उससे बचने के लिए मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, पर मैंने ये देखा था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा,
whenever I get the chance to study, I will study in that, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो. And sir, during my preparation I एक्चुअली सर मैं थोड़ा रात में ज़्यादा पसंद करता था पढ़ना, क्योंकि उस टाइम शोर नहीं होता है बिल्कुल भी, और सर जो कंसंट्रेशन है वो अपने पीक लेवल पे होता है. तो सर रात का पढ़ना मेरे ख्याल से सबसे सबसे सही है. उससे आपका सर जो जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है रात में, बिकॉज़ शोर शराबा नहीं होता है, ना कंसंट्रेशन कोई लैग होता है. तो सर ऐसा था 10th-12th में ऐसा कुछ नहीं बनाया था, बट इफ़ यू आर एबल टू स्टडी 6 आवर्स अ डे फॉर बैंकिंग इन अ एफिशिएंट वे, तो सर मेरे ख्याल से काफ़ी है किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए. और जब मेंस जब पास आ रहा हो तो यू कैन प्लस 2 आवर्स मोर, दैट विल मेक 8 आवर्स अ डे. एंड बस सर यही है कि 8 आवर्स अ डे मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सर मेंस के लिए आपको फिर एकदम जीए पढ़ना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आपको मेमोराइज करना पड़ता है. तो दिन में आप 1.5 आवर्स अ डे तो आप दोगे जीए को कम से कम, क्योंकि आपको 7-8 मंथ्स का रिवाइज भी करना है, फिर आपको 9 मंथ्स का पढ़ना भी, आपको क्विज भी अटेम्प्ट करनी है. तो 2 घंटे वो जीए में चले जाएंगे, बाकी का वही ना, वही सर 8 आवर्स अ डे फॉर मेंस एंड 6 आवर्स अ डे फॉर प्री, आई गेस इज क्वाइट इनफ. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. सर एक क्वेश्चन आपसे है कि एक सेल्फ स्टडी, कोचिंग और ऑनलाइन स्टडी, सो व्हाट्स योर सजेशन ऑन दीज फैक्टर्स कि किस क्या सबसे ज्यादा बेटर है, या फिर क्या किस किस टाइम पे ज्यादा बेटर होता है? सर सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सर बहुत लोग ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं, पर सर ऑनलाइन कोचिंग में सर वो सर जैसे उन्होंने पढ़ा, बट अगर सर वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद भी, तो सर वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो कि उन्होंने पढ़े हैं. तो सर सेल्फ स्टडी तो सबसे मेन रोल प्ले करता है. एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ऑनलाइन, फिर सर आपको बार बार आपको ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है. फिर तो आपको सर केवल पूरा सेल्फ स्टडी का ही रह गया है ना. फिर सर आप चाहे वो बुक से वो प्रैक्टिस को चाहे आप मॉक से करो या फिर आप किसी पीडीएफ से करो, वो मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. तो एक बार सर वंस यू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू डू ओनली सेल्फ स्टडी. फिर सर ऑनलाइन कोचिंग या कहीं ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है कहीं भी. बिल्कुल सही बात है. सेल्फ स्टडी इज ओनली द मेजर फैक्टर गाइस. सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर बहुत सीधी सी बात है, बहुत सी सिंपल सी बात है कि कोई भी आपको ऐसी कोई पुड़िया नहीं दे देने का, ऐसी कोई चीज नहीं दे देने का कि आप एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे. Until or unless you don't do the self study, you won't be able to crack any of the competitive exam. Not only banking exam, I'm talking about any competitive exam you can't crack. Yes, sir. Sir, one thing I would want to add is, yes, sir. So when I used to watch videos of puzzles, that how to approach a puzzles for main section. So, sir, when I used to see the teachers solving puzzles, I used to think that this puzzle was quite easy, and I did not practice it. सो सर ये काफी सिंपल थी, पर ये मतलब ये बन जानी चाहिए थी जब मैं उनके सॉल्यूशन दिखा करता था. पर जब मैं खुद बनाता था उन पजल्स को बिना सॉल्यूशन देखे, तो मुझे वो टफ लगती थी. तो सर ऑनलाइन कोचिंग का फायदा तो तभी होगा ना जब आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे. तो जब सर उन पजल्स को और कॉन्सेप्ट को सीख के मैंने मेंस पजल, उसमें पहले टाइम होता था, पहले सर आधा घंटा तक लग जाता था मेंस की पजल में, बट फिर वही वो टाइम कम होके 20 मिनट 15 मिनट्स पे आ गया. तो वो सर सेल्फ स्टडी से ही आता है, और मैंने सर सेल्फ स्टडी ही की थी. तो पजल्स का और सर डीआई का मेंस के लिए वो तो सर सेल्फ स्टडी से ही आएगा और किसी से नहीं आ सकता है. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल. अभी मेंस की अगर हम बात करें सर, कुछ ऐसी चीजें बताइए कि while doing our preparation और while attempting the examination, कि जो मेंस एग्जाम है वो प्री एग्जाम से कैसे अलग है, या फिर मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्री एग्जाम के अलावा हमें क्या करना चाहिए, या कुछ इस तरह की बात भी बताइए कि ऐसा जरूरी है कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करें, या फिर पहले प्री की करें फिर मेंस की करें. इन दो तीन चीजों को बताइए सर. Sir, if you are new in the banking sector, actually, sir, if you are new to the preparation in banking, you have to focus solely on the pre part. And sir, and once you start clearing the pre's of all the exams, फिर सर आप एक प्री और मेंस की साथ में तैयारी कर सकते हैं. पर सर अगर आपका प्री नहीं हो रहा है किसी भी एग्जाम में, तो आपको प्री करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप प्री नहीं पहुंचोगे, क्लियर नहीं होता, तो मेंस पे फिर आप फोकस नहीं कर सकते हो. तो सर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट यही है कि वंस यू क्लियर ऑल द प्रीज,
तो फिर सर उसके बाद आप मेंस की तैयारी कर सकते हो साथ साथ में। पर अगर सर आप नए हो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में प्रिपरेशन में, तो आप पहले प्री की ही करो, फिर उसके बाद सर आगे देखते हैं। बिकॉज सर IBPS एंड SBI बोथ गिव सम 1 month टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेंस। तो उससे सर आपका GA भी हो सकता है, तो सर आपकी तरफ मैथ्स के DI भी हो सकते हैं, इफ यू आर कमिटेड, fully committed to the mains और द एग्जाम। तो सर 1 month का टाइम भी काफी ज्यादा है स्टडी के लिए, मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो सर स्टार्टिंग में आपको प्री करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आप बिल्कुल न्यू है, if you are newcomer then focus on the prelims exams। अगर आप newcomers नहीं है, if you have some experience regarding the prelims exam then start preparing for the prelim as well as mains exam। तो दोनों की तैयारी एक साथ कीजिए। और मेंस एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ अलग होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड योर इंग्लिश लैंग्वेज आर सेम इन दैट सेक्शन। ओनली वन एक्शन इज मोर एडेड, जो कि है GA या बैंकिंग अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर। सो वो एक ऐसा सेक्शन होता है, तो उस सेक्शन के बारे में भी सर से जान लेते हैं। तो सर ये जो सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस कह लीजिए, तो वो उसको किस तरह से तैयार करना है? सर GA का सर ऐसा होता है कि सर हम लोग GA पढ़ते हैं, पर सर वो इतना ज्यादा लार्ज होता है कि ऑलमोस्ट देयर आर 30 हेडलाइंस और एक्चुअली देयर आर 30 न्यूज पॉइंट्स इन अ डे। एंड इफ यू think that 30 into 30, there are almost 900 news in a month। एंड सर किसी भी एग्जाम में, जैसे कि अभी सर मैंने SBI मेंस दिया था इसका JA का, तो सर उसमें मार्च का भी पूछा गया था काफी ज्यादा क्वेश्चंस। तो एंड सर इट इज अक्टूबर, एंड सर वो मार्च का भी पूछे थे। तो ये मान लो सर 7 और 8 months का पूछते हैं वो जनरली किसी भी मेंस में। तो सर देयर आर ऑलमोस्ट 7000 एक्चुअली न्यूज दैट यू have to remember while appearing for the mains। So it becomes quite important for anyone to practice as much as quizzes for the GA part, so that you can retain before going in the mains exam। So the quizzes you attempt, and you can attempt from various platforms। There is Aspirant Zone, there is Grade Up, there is Adda, and there are many more platforms। So sir, I guess if you have given your time for the quizzes in GA part, I think that you will be able to score at least 80% in GA। And I think that is enough in GA. If you are able to score 80% in GA or more, then it's a very good score in GA। And with this score of GA, you can qualify any mains, because if you are able to score good in GA, then it becomes easier for you to actually, if you are not that good at the other subjects like English, reasoning or mathematics, so still you can qualify the exam if you have scored quite well in GA part। Yeah। So sir, it's very obvious कि if you are good in quantitative aptitude, reasoning and your English language, so you definitely crack the prelims exams। So there is no any issue at all for the mains exam as well। But there is one more section added, that is general awareness and current affairs, and that becomes a very good factor for your selection। क्योंकि वही एक ऐसा फैक्टर बचता है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि you know very well the concept of quant and reasoning and English as well, but only a factor की general awareness और current affair आपको कैसे तैयार करना है। तो obviously guys 7 to 8 month it will be good। अगर आज की मैं बात करूँ, 2020 की मैं बात करूँ, 7 to 8 month का अगर आप current affair देख रहे हैं तो it is more than enough। बट लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है then you can go through the 3 to 4 months and major news of 7 to 8 month guys। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे सर ने बताया कि 2020 में जैसे इन्होंने अभी SBI का एग्जाम दिया है मेंस का, तो वहां पर क्या है 7 to 8 मंथ मतलब मार्च तक का करंट अफेयर में पूछा गया था। तो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वैसा बहुत ही अच्छा होगा। तो सर बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है कि बच्चे कुछ थोड़ा सा डरते हैं उससे, बैंकिंग अवेयरनेस का कुछ मतलब कंफ्यूजन सा रहता है। सर व्हाट एग्जैक्टली दैट सेक्शन इज एंड हाउ टू प्रिपेयर दैट सेक्शन? So like you mentioned that the important news, that the important while you mentioned just before that the जो important news होते हैं 7 और 8 months के, वो तो जरूर करना है। So sir, I think that was a very good that was very good point
So, because I want to mention that there were 4 to 5 questions from the budget that was presented on, I guess, 1st or 2nd February. So there were 4 to 5 questions that for how many farmers was the loan sanctioned for the irrigation part for the solar pump. So sir, the answer was 20 lakhs. So sir, if you haven't read the important news carefully, you won't be able to solve those questions. So सर आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर मंथ के वो तो आपको जरूर करने हैं। जैसे कि सर टेनिस में कौन सा फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट कौन जीता है, राफेल नडाल सर अभी जो जीता था। तो सर ये तो जरूरी आपको करने हैं। चाहे सर आप एक बार ये छोड़ सकते हैं कि किसने आपका मतलब आपने सर कितने परसेंट किस कंपनी ने किस कंपनी में कितना परसेंट स्टेक छोड़ा है या फिर कौन से एमओयू साइन हुए हैं, ये एक बार आप छोड़ सकते हैं। पर सर ये जो पार्ट होते हैं गवर्नमेंट स्कीम वाले या फिर ये जो सर कौन सी आईआईटी ने क्या बनाया है, ये सर ये वाला पार्ट आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि सर ये वाला पार्ट तो आने ही आने हैं। सर अभी भी आईआईटी रोपार और आईआईटी मंडी से क्वेश्चंस थे कि सर ये क्या बनाया है। जैसे तो कोविड-19 डिसइंफेक्टेंट स्प्रे थे तो वो सर आईआईटी मंडी ने बनाया था, रोपार ने बनाया था। तो अगर सर ये क्वेश्चन अगर आप ये सर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, अगर आपने छोड़ दी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और सर ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ साइन किया है फॉर द वाटर part for the water sewage plant in Uttar Pradesh. So that these things are the very important news that you need to focus on while preparing on mains. And sir ये जो days का part होता है कि important days होते हैं या फिर obituaries, ये एक बार आप लीव कर सकते हैं अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है। पर सर अगर आपके पास टाइम है, आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वो पार्ट भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सर हमें पता है कि अभी क्या ना मिशन सागर has been launched by the मिशन सागर सेकंड has been launched by the इंडियन गवर्नमेंट। तो जो मिशन सागर सेकंड लॉन्च हुआ है तो ऑब्वियसली जो 5 to 6 month ago the मिशन सागर फर्स्ट that was launched by the इंडियन गवर्नमेंट that will also become important। तो इस तरह से जो पुरानी 6 से 7 मंथ की न्यूज है वो भी कनेक्टेड हो जाती है that you need to go through। जैसे मिशन सागर अभी लॉन्च हुआ, सेकंड लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि भाई कितनी कंट्री वगैरह है। तो ये सब चीजें आपको मिशन सागर फर्स्ट से पता चलेंगी। तो मिशन सागर फर्स्ट विल आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। तो गाइस दिस इज हाउ अ बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर सेक्शन प्ले रोल इन द एग्जामिनेशन। सर यस सर, इन जीए आई वुड लाइक टू मेंशन दैट सर आपको हर दिन, जैसे आप हर दिन पढ़ते हो, अब किसी वेबसाइट से पढ़ो वो मैटर नहीं करता, पर आप पढ़ रहे हो अगर आप हर डे के मंथ न्यूज पढ़ रहे हो, सो सर जो लास्ट में जो वीकली क्विजेस आती हैं हर वेबसाइट पे, वो सर आपको वाइल प्रिपेयरिंग, सर मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम के पास आके आपको वो अटेम्प्ट करनी है, वो सर साथ साथ में आपके जो वीकली न्यू जो क्विज होती है उसमें सर ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन होते हैं। वो सर आप अलग अलग 2-3 वेबसाइट से अगर आप कवर कर लोगे, लाइक एसी और देयर इज ग्रेड अप भी सर वीकली देता है, और सर एस्पायरेंट जोन भी वीकली देता है। तो अगर आप ये साथ साथ में गो थ्रू करते रहोगे तो सर आपको जो प्रॉब्लम होती है कि मैं रिटेन नहीं कर पाते, कुछ लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस वीक से, वो भी आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे कि जब आप उनको देखोगे एग्जाम में तो आप बिना ऑप्शंस के भी मार्क कर सकते हो। तो सर ये जो मंथली और वीकली क्वेश्चंस होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जीए की प्रिपरेशन में। बिल्कुल सही बात है। मतलब रादर देन गोइंग वन टाइम ऑन अ न्यूज, आपको क्या है वीकली मंथली, इनफैक्ट इफ यू हैविंग टाइम फॉर द डेली वाइज तो आप उसे भी देखिए। क्योंकि देखिए जैसे ही आप डेली करंट अफेयर देखते हैं ना, और उन करंट अफेयर को आप कोरिलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क से कोई भी आया या फिर कोई भी न्यूज आपकी अफ्रीका से आई या कोई भी न्यूज आपकी फ्रांस से आई, तो आपको क्या है या कोई भी न्यूज इंडिया से आई तो आपको उनका कैपिटल करेंसी देखना होता है, या उस न्यूज से रिलेटेड जो भी कमोडिटी है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट कमोडिटी एज वेल। सो इससे क्या है, यू जस्ट स्टार्टेड मेमोराइजिंग द थिंग्स, आपको क्या है वो चीजें याद होने लगती हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही होता है, और जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं एंड वट एवर यू हैव मेमोराइज्ड, वो एग्जाम में आना होता है, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। It's a very good thing guys, start reading the current affairs on daily basis। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो it will be very good for you guys।
सर आपने अभी मेंशन किया कि कैपिटल करेंसी वगैरह का, तो सर मैं मेंशन करूंगा कि सर अभी क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ स्पेस रिसर्च में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो सर उसका आंसर था नाइजीरिया। तो सर एक ये क्वेश्चन भी था कि किस साथ साइन किया है, फिर सर ये था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि जिस कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है उसका कैपिटल क्या है। तो सर अगर आपने ये पढ़ा है तो सर आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और सर मेरे ख्याल से सर बैंक में सर 0.25 मार्क्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। ये तो सर फिर भी 2 मार्क्स हो गए जाके। तो सर अगर आप इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ रहे हो, करेंसी और ये सब याद रख पा रहे हो, वो सर केवल वीकली क्विज और मंथली क्विज से ही हो पाएगा, क्योंकि आप सब कुछ तो रिटेन नहीं कर सकते ना। तो सर इफ यू आर एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज, sir, then it becomes very easy for you to score 75 to 80% in marks in GA. तो सर अच्छा पॉइंट था आपका काफी ज्यादा कैपिटल करेंसी वाला, या जो भी कंट्री है उससे इम्पोर्टेंट और भी न्यूज है उससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। So thank you very much Rajat sir to being with us. So बहुत सारी चीजें आपसे पता चली, तो we got a lot of things from you for prelims exam as well as our mains exam. So thank you very much sir. So in just one line I just want to know what's your future plan, like you will be an IBPS clerk or you will be cracking some more exams. So sir, what's your future plan? Just in 2 to 3 lines I just want to know. So I have planned that if I become a PO at an early age, then I will focus only on the departmental exams, that the exams which the banks conduct in promotions like chief manager or the zonal manager. So if I become PO at an early age, then I will focus on in the growth in banking. एंड सर वैसे मेरा एसएससी में जल्दी हो जाता है सर। एसएससी वाले टाइम बहुत ले लेते हैं, जैसे कि सर अभी भी एक कैंपेन चला था कि उनका वो रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर कर रहे थे। तो अगर सर एसएससी में हो जाता है तो फिर मैंने सोचा इनकम टैक्स या अगर एएसओ मिल जाता है मुझे तो फिर सर मैं वो ज्वाइन कर लूंगा। बट सर इफ आई बिकम पीओ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, देन सर आई विल हैव वेरी मच टाइम फॉर द करियर ग्रोथ इन बैंकिंग टू। तो सर फिर मैं सोनली केवल बैंकिंग पे ही फोकस करूंगा कि सर मैं ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंच पाऊं। So thank you very much sir, thank you very much, very good strategy you have, very good future plan you have. So you just have lots of banking exams and SC exams ahead. Sir, wish you very good luck for the future and thanks for being with us. Thank you very much guys, this is all about the interview. Thank you very much.